नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता विभाग द्वारा पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण। रेणुकाचार्य ने कहा, बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा को खड़ा करने के लिए अथक परिश्रम किया। बसवनगुड़ पाटिल यत्नाल को पता होना चाहिए। सहयोगी दल टीडीपी के विधायक को पवन कल्याण ने लगाई फटकार। अवैध चावल की तस्करी से जुड़ा है मामला। सीएम चेहरा अब तक नहीं हुआ फाइनल, लेकिन आ गई शपथ ग्रहण की तारीख। आज आजाद मैदान में कार्यक्रम। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टरों की टीम। चक्रवाती तूफान पेंगल आज दिखाएगा अपना कहर। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता विभाग द्वारा पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पथ विक्रेताओं को स्वच्छता एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य पदार्थों में रंग न करने पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डॉक्टर संतोष काड़े, अंकिता अधिकारी, राजू बंकर नगर प्रशासक बसव कल्याण और अश्विनी घाड़े खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसव कल्याण। इस बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स को डॉक्टर संतोष काड़े ने बताया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जानी चाहिए और सभी को साफ सफाई रखनी चाहिए। और उन्होंने व्यस्त स्ट्रीट वेंडरों से कहा कि FSSAI लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। बसव कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बसव कल्याण तालूकादल्ली आहार सुरक्षते ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ 1 ದಿವಸದ परवानगी ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಅನ್ವಯವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾನ್ಯ ರಾಜು ಟಿ ಬನ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಲೋಟಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೇಕರಿಯವರು ಓನರು, ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬಾನಿಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು। ಅದೇ ತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ, ಈ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನಾವು ಯಾರು ಸರ್ವ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇಲೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಾವು ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ FSSAI ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಅಂತ, ನೋಂದಣಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಅದರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ವಹಿವಾಟಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ। ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ವಹಿವಾಟಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ವಹಿವಾಟಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾವ? ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಎರಡನೇ ಮಾತೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊರು ಇರಬಾರ್ದು. ಊರು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಲ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂದಲು ಇರಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೂದಲು ಇರಬಾರ್ದು ಕೂದಲಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಥಳನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಏರಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಚ್ಚೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎರಡೇನಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ, ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದಾಗ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಹಾಕೋ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಹನಿ ಅದು ಹಳ್ಳತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗಿನಾಗ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅದಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್. ಇವನ್ ಕಲರ್ದಾಗಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ कलर के लिए करेक्ट है वो आप वो यूज कर सकते हैं. और मिर्ची ಮಿರ್ಚಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಸಸ್ತ ಆದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ. ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಎರಡನೇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಕಲರ್ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್. नेक्स्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं खासकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर कटाक्ष करने की पार्टी के सहयोगी बसवनगुड़ पाटिल यत्नाल की आलोचना करते हुए पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने कहा है कि यह येदियुरप्पा ही थे जिन्होंने हर जगह साइकिल चलाई और दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के साथ कर्नाटक में भाजपा के निर्माण की दिशा में काम किया. उन्होंने कहा कि यत्नाल को उन वरिष्ठ नेताओं पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया है. पूर्व मंत्री बीसी पाटिल और कट्टा सुब्रमण्यम नायडू समेत भाजपा नेताओं के एक समूह ने पूजा करने के लिए कुडलमाले विनायक मंदिर का दौरा किया. अनुष्ठान के बाद रेणुकाचार्य ने यत्नाल की आलोचना करते हुए उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें भगवा पार्टी के किसी शीर्ष नेता का समर्थन प्राप्त है, जबकि यह हाईकमान ही था जिसने बीवाई विजेंद्र को भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया था. उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में विश्वास जगाने के लिए पूजा की गई है. यत्नाल पर तीखा हमला बोलते हुए रेणुकाचार्य ने कहा है कि अगर यत्नाल येदियुरप्पा और विजेंद्र पर हमला जारी रखते हैं तो यह खुद आलाकमान पर निशाना साधने के बराबर होगा. हर कोई जानता है कि पार्टी में येदियुरप्पा का क्या योगदान है. उन्होंने भाजपा को खड़ा करने के लिए दिन रात काम किया और सफल रहे, जबकि यत्नाल एक स्वघोषित नेता हैं. येदियुरप्पा को राज्य के लोगों और पार्टी के एक नेता के रूप में मान्यता दी गई है, रेणुकाचार्य ने कहा. रेणुकाचार्य ने यह
कहा कि कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यत्नाल कांग्रेस की तरह बोलते हैं। पार्टी ने कहा है कि यत्नाल को पार्टी के अंदर पत्थरबाजी बंद कर देनी चाहिए और भाजपा की शॉल ओढ़कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस सब पर आलाकमान की पैनी नजर है, जो सही समय पर फैसला लेगा। नायडू ने यह भी कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बारे में बात करना अनुचित है, जो वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा यत्नाल को पता होना चाहिए कि सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर राज्य और देश में एनडीए को मजबूत करेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने काकीनाडा बंदरगाह पर समुद्र में एक नाव पर सवार होकर राशन चावल से भरी एक नाव का निरीक्षण किया। उन्होंने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह निरीक्षण तब किया जब 640 टन चावल से भरी एक नाव समुद्र में फंस गई थी। पवन कल्याण ने अधिकारियों से पूछा कि वे बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण काकीनाडा बंदरगाह पर सरकारी चावल तस्करी अभियान के सख्त विरोधी हैं। उन्होंने वाईएसआरसीपी कार्यकाल के दौरान इस अवैध तस्करी अभियान को लेकर पूर्व विधायक वारमपूड़ी चंद्रशेखर के खिलाफ जंग छेड़ी थी। पवन कल्याण ने इस दौरान कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काकीनाडा स्थित बंदरगाह पर सुरक्षा खामियों से अवगत कराएंगे, क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ा खतरा है। अब जब पवन कल्याण सत्ता में हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिक गंभीर रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आज काकीनाडा बंदरगाह के अपने दौरे में पवन कल्याण ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया। पवन ने कहा, जब मैं कल बंदरगाह का दौरा करने जा रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं परिसर का निरीक्षण न करूं, क्योंकि इससे 10,000 लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बंदरगाह की सुरक्षा और इसे सही तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है। चावल की तस्करी के संचालन में शामिल जहाज को जब्त करें। जहाँ सेना नेता ने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में बंदरगाह अधिकारियों और तेलुगु देशम पार्टी के काकीनाडा विधायक वनमाड़ी वेंकटेश्वर राव की खिंचाई की। हालांकि अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने जिस तरह से टीडीपी विधायक को फटकार लगाई, उसने सभी को चौंका दिया। यह दूसरा मामला है जब पवन कल्याण ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही अपनी सहयोगी टीडीपी के नेता के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की। जिस तरह से पवन कल्याण ने जहाज को जब्त करने का आदेश दिया, वह पहले कभी नहीं देखा गया और वह गतिशीलता है जिसे हर कोई पवन से देखना चाहता है। ये पवन द्वारा यह आदेश पारित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रोकते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन सा चेहरा होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को भाजपा विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों और अन्य दिग्गजों के जुटने का संभावना है। सूत्रों ने बताया कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, ये तो तीनों पार्टियों के नेता मिलकर तय करेंगे, या आगे फॉर्मूला भी तीनों दलों के नेता तय करेंगे। सरकार के गठन को लेकर महायुति में चल रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आई है। पार्टी ने गृह मंत्रालय की मांग की है। शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग उप मुख्यमंत्री के पास होता है।
शनिवार की सुबह कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल के नजरुल नगर गांव में कृषि क्षेत्र में काम करते समय 21 वर्षीय महिला एम लक्ष्मी की बाघ के हमले से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में मवेशियों को मारने के बाद 3 से 40 ग्रामों के समूह द्वारा की गई तेज आवाज से बाघ घबरा गया। घबराहट में बाघ खेतों की ओर चला गया जहां दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे थे। कपास चुन रही लक्ष्मी पर पीछे से हमला किया गया। अन्य मजदूरों ने शोर मचाया तो बाघ वापस जंगल में भाग गया। लक्ष्मी को एम्बुलेंस से कागजनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद उसके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने न्याय और 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की मांग करते हुए कागजनगर में वन प्रभागीय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने स्थापित मानदंडों के अनुसार पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। परिवार से मुआवजा की प्रक्रिया के लिए विवरण प्रदान करने की मांग की गई है। वन अधिकारियों को संदेह है कि यह बाघ वही हो सकता है जिसे तेलंगाना महाराष्ट्र सीमा पर वानकीडीय मंडल के गोईगांव के पास देखा गया था, जिसका नाम जॉनी रखा गया है। कुमरम भीम आसिफाबाद के डीएफओ नीरज टिबरेला ने पुष्टि की है कि ट्रैकिंग टीम बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। इसी के साथ राज्य में एक बार फिर झामुमो गठबंधन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अब राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा जारी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर झामुमो नेता मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि वे झारखंड में एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। झामुमो नेता ने बताया कि 5 विधायकों पर एक नेता के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। ऐसे में मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। झारखंड मंत्रिमंडल के विस्तार पर झामुमो नेता मनोज पांडे ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री झारखंड में जल्द से जल्द संतुलित मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी सहयोगी पार्टियों को विश्वास मिले कि वे भी निर्णय लेने में शामिल हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। हम यह सोच रहे हैं कि कैसे सभी वर्गों को प्रतिनिधि दिया जाए। हमारे में कैबिनेट में अनुभवी महिला सशक्तिकरण और युवा उत्साह शामिल होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है, जिससे कि सभी झारखंड को लगे कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व है। मनोज पांडे ने कहा है कि 5 विधायकों पर एक मंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा जारी है। ऐसे में हमारे मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। एक कैबिनेट भी बढ़ेगा। हमारे पास 34 विधायक है। कुल विधायकों की संख्या 56 है। अगर हम 11 मंत्रियों का गुणा करते तो 55 होते। कैबिनेट को अंतिम रूप देने का यह एक आदर्श तरीका होगा, लेकिन यह उच्च स्तरीय अधिकारियों का निर्णय होगा। मैं सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई चर्चा को साझा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के संभल दौर पर कहा, चाहे उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव के नतीजे हो या महाराष्ट्र में भाजपा के पक्ष में जनादेश आने के बाद विपक्ष ने जिस तरह के बयान दिए, उससे कहीं न कहीं उन लोगों को बढ़ावा मिला है जो संविधान और न्यायालय के फैसले पर विश्वास नहीं करते। संभल में जो हुआ वह निश्चित रूप से गुंडागर्दी थी, अराजकता थी और एक वर्ग विशेष को इससे प्रेरणा मिली, जिसके कारण उन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जब तक वहां पूरी तरह अमन शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक यह प्रयास है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए अभी रोक लगाई गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उनके घर पर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक सतारा के दरे स्थित अपने निवास पर ठहरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बुखार है। सतारा में डॉक्टरों की एक टीम उनके आवास पर पहुंच गई है और उनका इलाज चल रहा है। सतारा में उनका पैतृक आवास है, जहां वह रह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शुक्रवार से सर्दी और वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले 1 महीने से राज्य के चुनावी दौरे पर थे और पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बैठकें करने के कारण उन्हें
बुखार और सर्दी जैसे वायरल संक्रमण से जूझना पड़ रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आराम करने के लिए गांव गए हैं। उन्हें फिलहाल बुखार है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह संग महायुति की बैठक में शामिल होने के बाद सीधे सतारा स्थित अपने पैतृक आवास पर चले गए। उन्होंने मुंबई में महायुति की बैठक रद्द कर दी। इसके बाद ऐसी अटकलें थी कि वह गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर बने गतिरोध से नाराज हैं। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन्हें दावों को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया है कि पार्टी प्रमुख अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसीलिए अपने गांव गए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल भाजपा ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। इस ऑडियो के शेयर करते हुए नरेश बालियान पर भाजपा ने वसूली का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि नरेश बालियान का संबंध गैंगस्टर से है और वह वसूली गैंग चलाते हैं। भाजपा ने हवाले से जरिए नरेश बालियान पर पैसों की लेन देन का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने ऑडियो शेयर करते हुए नरेश बालियान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस ऑडियो को शेयर किया है। अमित मालवीय ने नरेश बालियान का कथित ऑडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आप विधायक नरेश बालियान का गैंगस्टर के साथ ऑडियो कॉल वायरल हुआ जिसमें वे दिल्ली के बिल्डरों और व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जबरन वसूली का नेटवर्क चला रहे हैं और फिर खराब कानून व्यवस्था के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में तब्दील कर दिया है। आप विधायक नरेश बालियान के करीब सहयोगी का गैंगस्टर के साथ ऑडियो कॉल भी सार्वजनिक हो गया है। इस ऑडियो में दो लोगों के बीच बातचीत को दर्शाया गया है जिसमें एक व्यक्ति नरेश बालियान को बताया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति गैंगस्टर बताया जा रहा है। नरेश बालियान ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसे गलत और ट्रैप तथा धमकी बताते हुए सभी चैनलों से इस फर्जी खबरों को हटवा दिया था। एक कई साल पुराना मामला है। जब केजरीवाल जी ने कानून व्यवस्था पर भाजपा को घेरा तो ये कई साल पुराना फर्जी खबर लेकर आए हैं। माननीय कोर्ट ने न्यूज चैनलों को फटका लगाते हुए वीडियो हटवाया था। बाकी तुम्हें ऐसे देख कर मजा आ रहा है। कुछ काम धाम कर लिए होते तो आज कुछ फर्जी करने की जरूरत नहीं होती। करते रहो, मुझे मजा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा है। चक्रवाती तूफान फेंगल के शनिवार की दोपहर पुडुचेरी के निकट पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। बता दें कि शनिवार को चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवाती तूफान के पुडुचेरी के निकट शनिवार दोपहर तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। जिलाधिकारी के कुलोथुंगन ने पीडब्ल्यूडी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों संग चर्चा की और हालात की समीक्षा की। इसी बीच पुडुचेरी और चेन्नई की समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी हैं और तेज बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी और चेन्नई के तटों से टकराएगा। इस बीच तमिलनाडु में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए बीते दिनों सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और राज्य की टीम को तिरुवूरू, मयिलादुथुराई, नागपट्टनम, कुडालोर जिले के लिए रवाना किया गया। बता दें कि चेन्नई और आसपास के जिले चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर, उत्तरी तटीय शहर कुडालोर और नागपट्टनम सहित कावेरी डेल्टा उन स्थानों में शामिल है जहां बारिश लगातार देखने को मिल रही है। इन इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के कारण चेन्नई के ओएमआर रोड समेत कई इलाकों में भारी यातायात जाम देखने को मिला। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ। भुवनेश्वर से भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा है कि जेपीसी के अध्यक्ष ने रिपोर्ट पेश करने की तारीख को 2025 में बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हर बार जेपीसी वक्फ संशोधन विधेयक पर बैठक करती है और विपक्षी नेता हंगामा करते हैं। अपराजिता सारंगी ने कहा है कि वे किसी भी तरह के तर्क या बहस से भागते हैं। सरकार के पास हर तरह के संशोधन के लिए एक कारण होता है। विपक्षी नेता केवल प्रस्तुति की तारीख में विस्तार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है और विपक्ष के नेता हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, सरकार ने जो 44 संशोधन का प्रस्ताव रखा है इस पर किसी भी तरह की रचनात्मक आलोचना से भागते हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार हर एक प्रस्तावित संशोधन के भविष्य में कारण से खड़ी है। सारंगी ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऐसा बिल किसी कारण से उपस्थित किया, लेकिन यह लोग भागते हैं। पिछली बार जब हंगामा हुआ, विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने वॉकआउट किया। उनके बाद हम जैसे लोग जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं उनका वापस लेकर आए।
लेकिन उनका एक ही मकसद था कि डेट बढ़ाई जाए। इसके बाद काफी देर तक आलोचना हुई, काफी देर तक विवाद हुआ और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने रिपोर्ट की पेशकश की तारीख को 2025 में बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता विभाग द्वारा पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण। रेणुकाचार्य ने कहा, बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा को खड़ा करने के लिए अथक परिश्रम किया। बसवंत पाटिल यत्नाल को पता होना चाहिए। सहयोगी दल टीडीपी के विधायक को पवन कल्याण ने लगाई फटकार। अवैध चावल की तस्करी से जुड़ा है मामला। सीएम चेहरा अब तक नहीं हुआ फाइनल, लेकिन आ गई शपथ ग्रहण की तारीख। आज आजाद मैदान में कार्यक्रम। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टरों की टीम। चक्रवाती तूफान पेंगल आज दिखाएगा अपना कहर। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।